بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اس وقت سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ پہ موجود ہوں اور یہاں اس موجودہ پولیٹیکل جو صورتحال ہے اس میں پہلی مرتبہ اپوزیشن کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سربراہان اکٹھے بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے. اس سے پہلے کوئی ایک اجلاس جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ جس میں تقریباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سردار اختر جان مینگل جو تھے وہ موجود نہیں تھے اپوزیشن میں سے، ادروائز باقی تمام اپوزیشن جماعتیں موجود تھیں. اس اجلاس کے حوالے سے بھی اور خاص طور پہ بہت کچھ جو پس پردہ پیغام رسانی بھی ہوتی ہے، وکالت بھی ہوتی ہے، عدالت بھی ہوتی ہے، سیاست بھی ہوتی ہے. تو سیاسی خاندان سے وکالت اور عدالتی خاندان سے فیصل چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل بھائی، کیا یہ پہلے پی ڈی ایم بنی تھی اب کوئی جی ڈی ایم بننے لگی ہے؟ دیکھو علی شیر، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان میں ریکوائرمنٹ تھی. ہم تو جو سیاسی لوگ ہیں ہم تو کافی دیر سے اس بات پہ قائل تھے کہ سیاسی اتحاد ہونا چاہیے اور اپوزیشن کا اتحاد ہونا چاہیے. جو اپوزیشن ہے وہ اتحاد میں مضبوط نظر آتی ہے، اس کے برعکس حکومت اگر اتحاد کی ہو تو یہ کمزور نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کی ایفرٹ تھی، اسد کیسر صاحب کی ایفرٹ تھی، باقی جو ہمارے دوسرے دوست ہیں حامد رضا صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، علامہ ناصر عباس صاحب ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جو پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت بڑی جماعت ہے، باقی جماعتوں کے ہمارے پاس اتنی سپیس ہے کہ ہم ان تمام کو ایک نیشنل ایجنڈا پہ لے کے آئیں. اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ آئین کی بحالی، جمہوریت کی بحالی، صاف شفاف الیکشن. آج آپ نے اعلامیہ سن لیا اور تمام جو ہمارے قائدین کا متفقہ یہ ایک فیصلہ ہے اور اس پہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر سے سپورٹ حاصل ہے. آج آپ نے دیکھ لیا، یہ ایک آغاز ہے. انشاءاللہ اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. فیصل بھائی، یہ سارے لوگ بیٹھ تو گئے، اسی طرح کا اتحاد پی ڈی ایم بھی بنا تھا اور پھر بعد میں جو اس نے انڈے بچے دیے جس سے سب کوئی آگاہ ہے اور یہ اسی کے بچے ہیں جو ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نکلتے چلے آ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیشہ یہی نظر آیا کہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی بیک. وہ آفتاب شیرپو کے مطابق ہمیں ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیچھے بھی وہ ہیں اور ان کے پیچھے بھی وہ ہیں. تو یہ دوسری طرف آپ کے بانی چیئرمین جو ہے وہ خط لکھتے ہیں اپنے وی لاگ میں تو نام لے دے آرمی چیف کے، آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو. عمران خان. ہاں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب. اپنے وی لاگ میں وہ ٹی وی میں نہیں لے سکتے، وی لاگ میں لے رہے ہیں، وہ ٹی وی میں نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے بات آپ کی. تو وہ خط لکھتے ہیں آرمی چیف کو کہ جی یہ سب کچھ کرے. تو یہ پھر سیاسی قیادت کس لیے؟ اگر وہیں پہ جا کے ونڈو کھولنی ہے تو دیکھیں دو چیزیں علی شیر. بات یہ ہے کہ جو پی ٹی ایم حکومت ہے، جو پی ٹی آئی ہے نا، اس کو ایک ایج ہے. پی ٹی آئی کو ایج یہ ہے اس سے دوسری سیاسی جماعتوں کے اوپر، پی ٹی آئی پاپولر ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ عوام ہے، ٹھیک ہے. اور عوام جو ہے وہ فوج کے پیچھے جو فوج ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو پی ٹی آئی کو یہ پی ڈی ایم کو ایج حاصل نہیں تھا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ پی ٹی آئی کو یہ ایج حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایک سیاسی جگہ ہے، ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. ابھی یہ الیکشن الائنس نہیں ہے، یہ ایک اتحاد ہے جو ملک میں. دیکھیے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب الیکشن کی طرف جانا ہے تو الیکشن کا ماحول بنانا ہے. الیکشن سے ماحول میں، الیکشن میں جب زیادہ لوگ شامل ہوں گے اور وہ یک آواز ہو کے الیکشن مانگیں گے. آج ہم نے الیکشن کمیشن کے جو باقی ممبران ہیں ان کی مستعفی ہونے کی بھی بات کی ہے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں ناکام ہوا. لہٰذا جو اسد کیسر صاحب کی آج جو ایک کوئی کاوش ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. اور اسی طرح سے ہم اس آواز میں مزید آوازیں بنائیں گے. الیکشن الائنس وہ جب ہوگا جب الیکشن پاس آئیں گے تو پھر اس کی کیا خد و خال ہوتے ہیں، کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ تو پھر یہ جو سیاسی قیادت یہاں موجود تھی یہ تو ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے. اچھا صاحب کا یہ موقف رہا ہے، مولانا صاحب کا یہ موقف رہا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے، اسے کرنے دینا چاہیے، نہ ہم اسے کھینچیں نہ وہ مداخلت کریں. لیکن آپ کے قائد جو ہیں انہوں نے آرمی چیف کو جو خط لکھا تو اس کی تائید کی ہے آپ کے ان لوگوں نے اس خط کی. دیکھیے اس خط کا ظاہر ہے جو اس وقت کیا جو عمران خان صاحب نے یہ جو لیٹر لکھی ہے اس میں وہ 6 کور وہ نشاندہی کی ہے ان خرابیوں کی جس کی وجہ سے عوام اور فوج میں ایک خلیج پیدا ہوئی ہے. اور اس خلیج کو پر کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ پالیسیوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے.
यानी अगर आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है उसको मेजॉरिटी पे इम्पोज करेंगे तो ज़ाहिर है क्योंकि उनके पास अवामी मैंडेट नहीं होता, वो पूरा एतमाद हुकूमत नहीं होती। तो ये जो है एतमाद का फुकदान है, जिससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसमें मुल्क में मुआशी जमूद है, टेररिज्म और का जो है मामला बहुत बढ़ गया है। आप देखिए मीडिया जो है, आप अभी भी जो है ये अब आप क्योंकि आदत हो चुकी है ना, साल डेढ़ से आप बानी बानी कह रहे हैं, आप अपने वीलॉग्स पे भी नाम नहीं लेते हैं। तो ये एक वो चीज़ अदलिया का जो मामला हुआ है, इन सारी चीज़ों को रखने के लिए जितनी आवाज़ें हमारे साथ रहेंगी हम उनको मिलाएंगे, हम उनको लेके एक भरपूर किस्म की तहरीक आएंगे। इसलिए मैंने अपने हमेशा जो पहले भी मैंने मीडिया से आपके दोस्तों से बात की, मैंने कहा कि इस वक्त PTI जब निकलेगी तो अकेली नहीं निकलेगी, हम जब निकलेंगे इस वक्त पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। यानी इससे आपको लगता है कि इस बार वो जो मार अकेली PTI को पड़ जाती थी अब उसमें और शामिल हो गई, या बाकी सबको मारा नहीं जा सकता? नहीं, बात यह है कि जब आप 1 और 11 होते हैं ना, जब इकट्ठे हो के आप असूली बात करें, कोई बेअसूली बात तो नहीं है। जमहूरियत की बहाली और आइन की बहाली जो है, रूल ऑफ लॉ, इसमें कौन सी बेअसूली, इसमें कौन सा ज़ाती एजेंडा? कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। इमरान खान साहब ने तो अपने मुकदमात की अपनी रिहाई कभी भी जो है वो न पिछले मुज़ाकरात की रखी, उन्होंने कहा हाँ मेरे वर्कर्स हैं, उनको रहा करें। जब आपके एलामिये में कहा जाएगा कि जी सारी हुकूमतें इस्तीफ़ा दें, तो इस्तीफ़ा दे के अपने आप तो कोई घर नहीं चला जाएगा, क्यों देंगे? नहीं, फिर लड़ाई है ना। नहीं, लड़ाई देखिए सियासी लड़ाई तो होनी चाहिए। सियासी लड़ाई के बगैर हमको ये सियासी लड़ाई है जो 24-26 को हुई थी या उससे नहीं पहले जो हुई थी। देखिए उस पे तो हुकूमत जो है मुलव्वस है। हमारा ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत जो है इन शहादतों में मुलव्वस है, इसलिए हम जुडिशल कमीशन की मांग कर रहे हैं। और वो जुडिशल कमीशन बनेगा तो ही थर्ड न्यूट्रल एम्पायर आएगा, तो तभी वो रोल्स का तयन करेगा ना कि हमारा रोल क्या था, उनका रोल क्या था। 24 और 26 को जो हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख का भयानक वाक़या है। जलियांवाला बाग को रिपीट किया गया है। और वो जनरल डायर जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कल भी जो बात की है इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बात की। हम उनकी धमकियों से मरूब नहीं होने वाले। हमारी ना इस्लामाबाद आने की कॉल है अभी तक, ना हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, ना धरने की। वो इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि वो एक जलसी, एक कॉर्नर मीटिंग की तो इजाज़त नहीं देते। ये कोई नॉर्थ कोरिया थोड़ी है, ये कोई अपना कम्युनिस्ट एरिया थोड़ी है, ये हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। जो सब यहाँ इस इजलास पे आते हैं, क्या मुश्तरकात ही हमेशा होते हैं ना कि ये कुछ चीज़ें जैसे उन्होंने तय कर लिया था PDM वालों ने कि जी हमारी मुश्तरक बात एक है कि किसी भी तरह से इमरान खान को घर भेजना है। वजूहात उसकी अमेरिका से लेके जहाँ तक जो बाजवा साहब सब कुछ सामने आ गया, तो यहाँ भी तो कोई मुश्तरकात तय हुए। इसमें मुश्तरका आइन की बहाली है, जमहूरियत की बहाली है, हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। इन हुकूमतों को घर देखिए, इन हुकूमतों को घर ये हुकूमतें गैर जमहूरी हुकूमतें हैं, गैर नुमाइंदा हुकूमतें हैं। अगर नुमाइंदा हुकूमतें होती तो फिर पूरा एतमाद। हमने 3 लॉन्ग मार्चेस की इमरान खान साहब के दौर में इजाज़त हुई थी। मौलाना साहब भी आए थे, बिलावल साहब भी आए थे, मरियम बीबी भी आई, ठीक है। उनको किसी ने नहीं रोका। कभी किसी कारकुनान के घर पे अटैक हुआ, कभी किसी की घर वालों के ऊपर हुआ, कभी घर तोड़े गए, कभी खवातीन का चादर चारदीवारी का तकदस। नहीं, मरियम नवाज के साथ तो कोई चादर और चादर नहीं, वो तो कॉन्विक्ट थे, वो कॉन्विक्ट थे। नहीं, कराची में जो हुआ था, कराची में तो फिर सिंध में जरदारी साहब है ना, उनसे पूछे ना कि क्यों हुआ। फिर उसके बाद जिन्होंने किया था तो फिर उनके साथ हुआ भी था ना, ठीक है। इशू ये है कि हमारे दौर में कभी भी इस किस्म की फसाइयत, ये फॉल्स पैरेलल ना ड्रा। मसला ये है कि हमारे लोग जो हैं वो 24 को जो है वो बराबर करने के लिए जो 18 में भी, और नहीं 18 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, 24 में और 71 में पैरेलल ड्रा कर सकते, बाकी कोई पैरेलल नहीं। तो ये जो हमारा आज इजलास हुआ है, ये एक बहुत इस्लामाबाद में बारिश नहीं हुई, लेकिन सियासी बारिश में पहला खतरा है। इंशाअल्लाह इस मुल्क में आइन भी बहाल होगा, जमहूरियत भी बहाल होगी और अगले फेजेस आपको इस अपोजिशन इत्तेहाद के क्या नज़र आ रहे हैं? क्या कोई अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी? फेजेस किस तरह तय होंगे? देखिए अभी स्टेप वाइज चलेंगे और वो हम उसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, मजीद लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और हमारी कमेटी भी जो है फॉर्म हो रही है। वकला और मीडिया को भी साथ लेंगे, क्योंकि पीका एक्ट जो है वो ज़ाहिर है उसके हवाले से मीडिया जो है वो खासा नाला है, वकला जो है वो जजेस के हवाले से जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है, लेकिन वैसे वो हुए तो चले जा रहे हैं, जो कुछ उन्होंने चाहते हैं वो किए जा रहे हैं। ये ऐसा ही होता है, जब ताकत होती है ना, हाथी जो है वो चलता है तो अपना वो जंगल जो है वो सारा जो है वो रोन देता है, ठीक है। लेकिन फिर जब हाथी निकल जाता है तो जंगल फिर खड़ा हरा भरा हो जाता है। तो इस वक्त हाथी है, उसको बाहर निकालना है। ये हाथी कितने के टाइम में निकलता नजर आ रहा है बाहर? देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, सब मिलके करेंगे। सालों लगेंगे? नहीं, सालों तो नहीं लगेंगे, आजकल जल्दी हो जाता है, सोशल मीडिया ना, ज़्यादा देर नहीं लगती। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं,
आप लोगों के पीछे पहले काफ़ी सारे मुज़ाकरात हो रहे थे, सबको पता हो रहे थे, तो उसके बाद मौलाना साहब ये कहते होते थे, हमें भी कहते थे कि हम पीटीआई वालों से पूछते हैं कि जहां आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, करना चाहते हैं, पहले ये तो क्लियर कर लो कि आपने वहीं से कोई कुआं निकालना है या वापस हमारी तरफ आना है। फिर वो वापस आए भी सही, आप लोग वापस भी आ गए, ट्राई भी करके देख ली, वो जो कहते हैं ना मछली पत्थर चाट के वापस आ जाती है, तो वो सब कुछ हो गया। अभी भी यहाँ खड़े रहेंगे या फिर दोबारा? हमारी कोशिश है, सियासी कोशिश है, सियासतदान मुज़ाकरात करते हैं, सियासी जमातों से भी करते हैं, तो ताकतवर इदारों से भी करते हैं। पाकिस्तान की तारीख है, आप आइडियली ठीक कह रहे हैं कि सियासी लोगों से बात होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में फुटप्रिंट है एस्टैब्लिशमेंट का, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी ये दोनों साथ साथ चलेंगे? कभी कहना भी चला, कोई तारीख में मिसाल दे दो पाकिस्तान की। इसका मतलब है कि अभी इदारे हैं ना, इदारों को साथ लेकर चलना वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, अली अमीन का कह रहा है चल रहा है तो चल रहा है। आपको यकीन है कि अली भी ठीक ही कह रहा है? नहीं, अली अमीन ठीक कह रहा है, मुझे तो कोई शक न करने की कोई वजह नहीं है ना शक करने की। मौलाना साहब मुतमिन हो गए हैं आपकी बातों से, क्योंकि आप देखिए लोगों ने सर, 26वीं यानी तरमीम के बाद तो अभी देखिए, अभी ये आगाज़ है, ऐसा सब बनेगा, इसका खतखाल है, थोड़ा कोई कमेटी बनाने पे भी इत्तेफाक हुआ ये कमेटी भी बनेगी। पीटीआई और जेयूआई के दरमियान? नहीं, ये पूरा जो तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन का ये कमेटी। अच्छा, यानी असूली तौर पे प्लेटफार्म जो है वो जो पहले से तय हुआ था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, इस प्लेटफार्म का नाम वही हो जी वही, उसमें वकला भी होंगे, साफ़ी भी होंगे, सिविल सोसाइटी होगी, पॉलिटिकल जमातें होंगी। इंशाल्लाह। एक लास्टली बात, ख्वाजा आसिफ साहब की हम पार्लियामेंट में तकरीरें सुनते थे, तो वो तो उन्हें तो पता था ना कि वो डिग्गी में जा रहे होते थे, तो वो कहते होते थे पीटीआई वालों तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब छत आप पे गिर पड़ेगी, आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, इशारे दे रहे होते थे। आपका भी कुछ ऐसा ही है? इस बार अवाम जब आपकी ज़मीन, आपके पैरों तले से ज़मीन खींचेगी तो फिर आपको पता चलेगा कि अवामी ताकत क्या होती है। कितना एक टाइम ले सकती है आवाम? क्योंकि मैं प्रोफेशनल वकील हूँ अली शेर, में टाइम नहीं देता हूँ। देखो तेल और तेल की धार देखो। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपकी ज़बरदस्त गुफ्तगू और बड़ी तैयारी से बच निकलने के रास्ते। मेहरबानी। शुक्रिया। थैंक यू।